Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. We are going to continue our chapter number 3, metals and non-metals. Today we are going to start a new topic 3.4, occurrence of the metals. In this video particularly, we are discuss two questions. First of all, the define some terms, and second is classification of the metal on the basis of the reactivity. So first of all, we explain and discuss defined terms. First of all is the minerals. What is a minerals? The element or compounds which occurs naturally in the earth crust are known as the mineral. सबसे पहला क्वेश्चन है मिनरल क्या है? So mineral is the element or the compounds. Minerals element या compounds form में available रहता है. Occurrence naturally in the earth crust. Earth crust से naturally ये हमें जो मिलता है वो element या compounds form में होता है जिसे हम minerals कहते हैं. So finally, minerals is the element or the compounds which occurs naturally in the earth crust and known as the minerals. Second one, ores. What is ores? The minerals which contain a very high percentage of the particular metal, and it can be extracted profitably from them are called the ores. अच्छा, minerals के बाद ores क्या है? The minerals which contain a very high percentage of the particular metal. Minerals के अंदर high percentage of particular metal जो available होता है, it can be extracted profitably from them, जिसमें से मतलब कि मिनरल में से उसे बाहर निकालते हुए इसे प्योरीफाई करते हुए हमारे लिए जो प्रॉफिटेबली बनता है वो पार्ट जिसे हम ऑर्स के नाम से जानते हैं या फिर ऑर्स ऑफ द मेटल कहते हैं. तो सेकंड है ऑर्स. ऑर्स का मतलब है minerals which contain a very high percentage of the particular metal and it can be extracted profitably from them are called the ores. Now third one, again, ores obtained from the earth crust does not contain ores of the element only. जब हम ores निकालते हैं मिनरल में से हम ores फाइंड आउट करते हैं तब जरूरी नहीं कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल ही हम इसे ऑब्टेन करें, but ores are usually contaminated with the large amount of the impurities. लेकिन ores के साथ साथ large amount में impurities भी available होती है, such as the soil, sand, compound of the other metals. कौन कौन सी impurities होती है ores के अंदर? ores के अंदर sand, soil और other compounds of the metals available रहता है, which are called the gans, जिसे gans के नाम से जानते हैं. तो ये और कुछ नहीं but large amount of impurities which can be present in the forms of the ore of the metals, इसे बोलते हैं gans. तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने 3 definitions को देखा. रिपीट करते हुए, फर्स्ट मिनरल्स. व्हाट इज द मिनरल? द एलिमेंट और कंपाउंड्स which occurs naturally in the earth crust are known as the mineral. Second, what is ores? The minerals which contain a very high percentage of the particular metal and it can be extracted profitably from them are called the ores. And third, the gans. Ores obtained from the earth crust does not contain ores of the element only, but ores are usually contaminated with a large amount of impurities such as the soil, sand, compounds of the other metals which are called the gans. Now, question number 2. Let's see the word classification of the metal on the basis of the reactivity or reactive series. First classification is metals of the low reactivity. Metals at the bottom of the reactive series are the least reactive. हमें पता है कि जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था रिएक्टिव सीरीज को, उस रिएक्टिव सीरीज के बॉटम में सबसे नीचे वाले हिस्से पर जो मेटल्स रहती है वो मेटल लो रिएक्टिविटी के साथ रहती है. सो मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी मीन्स मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव. वो सबसे कम रिएक्टिव है. दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट. जनरली ये हमें अर्थ क्रस्ट में से फ्री फॉर्म में अवेलेबल बनती है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये इस टाइप के मेटल हैं जो लो रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट करती हैं.
Here, copper and silver are also found in the combined state as their sulfide form. लेकिन इसमें कॉपर और सिल्वर ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल है, खास करके सल्फाइड फॉर्म में ये हमें मिलती है। सेकंड है मेटल ऑफ द मिडल रिएक्टिविटी। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये कम भी लो रिएक्टिविटी भी नहीं दिखाती, इसी तरह वो हाई रिएक्टिविटी भी नहीं दिखाती। यहाँ पर रिएक्टिविटी है वो मॉडरेटली रिएक्टिविटी वो दिखाती है, और इसके एग्जांपल है जिंक, Zn, Fe आयरन और Pb lead। They are found in the earth crust as the form of the oxide, sulfide and carbonates। ये जो हमें मेटल्स मिलती है, मिडल रिएक्टिव मेटल्स, ये जनरली हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। ये ऑक्साइड फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म में मिलती है। दैट मीन्स कि इसके साथ ऑक्सीजन या सल्फर या कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज कंबाइन हुई होती है। थर्ड स्टेज है मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। सबसे ऊपर की जगह पर, ऊपर के स्थान पर जो मेटल्स हैं वो हाई रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम Al। दिस मेटल आर सो रिएक्टिव, ये बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही रिएक्टिव है, दैट दे नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। इसलिए वो कभी फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में नहीं मिल सकती। तो हमारा दूसरा ये क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने इसको 3 क्लास में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्लास मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं वो बॉटम फॉर्म में रहती है रिएक्टिव सीरीज के और लिस्ट रिएक्टिव है। दे आर फाउंड ऑफन फ्री स्टेट फ्रॉम द नेचर। नेचर में वो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कॉपर और सिल्वर जो कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल रहती है। दूसरा ग्रुप है मेटल्स ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी। ये मॉडरेटिवली रिएक्टिव करती है और इसके एग्जांपल है जिंक, आयरन और लेड। They are found in the earth crust in oxide, sulfide and carbonate forms। ये जनरली हमें ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म्स में अवेलेबल बनती है। लास्ट और थर्ड क्लासिफिकेशन था मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। ये मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज हमें देखने को मिलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने के कारण नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, वो कभी हमें मुक्त अवस्था में नहीं मिलते। और इस प्रकार की मेटल्स का एग्जांपल है पोटेशियम K, Na सोडियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg एंड एल्यूमिनियम। ये इस टाइप के मेटल्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने 3.4 पॉइंट अकरेंस ऑफ द मेटल्स में स्टार्टिंग करते हुए कुछ टर्म्स जिसे डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, आपके साथ डिस्कस किया मिनरल्स और ऑर्गेन्स को, और इसके बाद हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लिया मेटल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व इन द एक्सक्रेशन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट, जिसमें हम एक चार्ट एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, और किस तरह से और में से प्योर मेटल्स फाइंड आउट होती है डिफरेंट फॉर्म में, ये दिखाएंगे। और फिर बात करेंगे इनरिचमेंट ऑफ द ओर्स को इनरिचमेंट किस तरह से उसका किया जाता है, जिससे हाईली परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल इसमें से फाइंड आउट की जा सके। तो आज इन दोनों वीडियो से हम इस पॉइंट की शुरुआत करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आपके नोट में, और डेफिनेशन है उसको खास ध्यान दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।